Rajya Sabha. Let's have a look on it. Motion moved. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Motion for election to the All India Institute of Medical Sciences, Avantipora, Jammu Kashmir. Dr. Harshavardhan ji to move motion. Respected Sir, I rise to move that in pursuance of clause G of section 4 of the AIMS Act 1956, read with section 6 of the AIMS Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such manner as the chairman may direct one member from amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, Avantipura, subject to the provisions of the Act. Right. Motion moved. Those in favor please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Motion for election to the All India Institute of Medical Sciences, Madurai, Tamil Nadu. Dr. Harshavardhan ji to move motion. Respected Sir, I rise to move that in pursuance of clause G of section 4 of the AIMS Act 1956, read with section 6 of the AIMS Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such manner as the chairman may direct one member from amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, Madurai, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Motion for election to the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur and Rajasthan. Dr. Harshavardhan ji to move motion. Respected Sir, I rise to move that in pursuance of clause G of section 4 of the AIMS Act 1956, read with section 6 of the AIMS Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such manner as the chairman may direct one member from amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, in the vacancy caused due to the retirement of Shri Narayan Lal Pancharia from the membership of Rajya Sabha on 9th April 2020. Motion moved. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Secretariat may revisit all this procedure and make it very simple. Time इसी में जा रहे, election बाद में है. Supplementary demands for grants 2020-21. Sri Anurag Thakur. Sir, on behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing the supplementary demand for grants for the year 2020 and 2021. Thank you. Zero over. Sri Rajamani Patel. लोक सभा चैम्बर माननीय सभापति महोदय. Okay. माननीय सभापति महोदय, विषय है पुरातात्विक देऊर कोठार को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने बाबत. देऊर कोठार रीवा के प्रसिद्ध बौद्धकालीन स्तूप है. यह विंध्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्तूप है. यहाँ छोटे बड़े स्तूपों की संख्या 49 है. यहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व के शैल चित्र एवं गुफाएं हैं. लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक द्वारा ये स्तूप बनवाए गए थे. यहाँ बौद्ध भिक्षु आध्यात्मिक स्थल बना करके शिक्षा दीक्षा एवं साधना करते थे. वहाँ पर ब्राह्मी लेख, अभिलेख, शिलापट्ट, स्तंभ, तोरण द्वार के अवशेष आज भी मौजूद हैं. यहाँ की शैल गुफाएं आज भी आकर्षक का केंद्र है. यह सुरम्य घाटियों के बीच में है. 1988 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया था. यहाँ हर वर्ष बौद्ध महोत्सव का मेला भी लगता है. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि देऊर कोठार रीवा को राष्ट्रीय पुरातात्विक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाए तथा स्थल के विकास हेतु राशि स्वीकृत करने की कृपा करें. धन्यवाद जी. श्री बी रेंगैया यादव. रेंगैया. నమస్కారం సార్. లోక్సభలో ఉన్నాం సార్. लोकसभा.
సార్ మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. తెలుగు ఎస్ సార్. డిమాండ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఇన్ తెలంగాణ గురించి, అక్కడ ఉన్న సమస్యల గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్. ముఖ్యంగా ఏపీ రియార్గేషన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటివి మరి చాలా రంగాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావట్లేదు సార్. ముఖ్యంగా డ్రై పోర్ట్ ఒకటి రావాల్సి ఉండే, అది కూడా రాలేదు. తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ హైదరాబాద్ టు నాగపూర్, మరి అక్కడ జహీరాబాద్ దగ్గర 3,500 ఎకరాలు కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెడీగా ఉంచింది సార్. అట్లనే మరి హైదరాబాద్ టు వరంగల్, హైదరాబాద్ ఫార్మసిటీలో 10,500 ఎకరాలు కూడా ఉన్నాయి. దండుమల్కాపూర్ మా నల్గొండ జిల్లాలో విజయవాడ రోడ్లో కూడా పారిశ్రామిక కేంద్రం ఉన్నది సార్. హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు కారిడార్ కూడా అప్లై చేశాము. కానీ మరి వీటికి ఇంతవరకు కూడా ఈ NICDIT నుంచి అప్లై చేసినాం కానీ అక్కడి నుంచి పర్మిషన్ రాలేదు సార్. ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా థర్డ్ పార్టీ నుంచి తీసుకోవాలంటే మా స్టేట్లోనే మరి ఎలక్ట్రిసిటీ తయారైంది కాబట్టి మాకే ఇవ్వాలని చెప్పి కోరినాం. అన్ని ఫైల్ కూడా అప్లై చేసినాం సార్. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క తెలంగాణలో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత భారతదేశానికే అన్ని రంగాల్లో రోల్ మోడల్గా ఉండి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కేసీఆర్ నాయకత్వంలో జరుగుతున్నాయి సార్. కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డా కూడా కొత్త రాష్ట్రమైనా అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉన్నది సార్. ఏమి కావాలి అయిపోయింది సార్. మరి డైనమిక్ మరి ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు TS ఐపాస్ ప్రవేశపెట్టినాక 14,857 పరిశ్రమలు వచ్చినాయి సార్. 21,64,000 ఇప్పుడు అన్ని వచ్చాయని చెప్తే ఇప్పుడు కొత్తగా ఎందుకు మళ్ళీ అంటారు? విషయం చెప్పండి. He's saying we got this, we got that and all. I am telling you, don't tell all this to the people. They will say, why then need for? Please repeat the demand. Hurry. What is your question? వెబ్ సర్వీసెస్ కూడా 20,000 కోట్లతో వచ్చింది సార్. అందుకనే మా నల్గొండ జిల్లాలో కూడా తమరికి కూడా తెలుసు, మిర్యాలగూడలో రైస్ మిల్లులు ఏసియాలో 2వ స్థానంలో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని సిమెంట్ పరిశ్రమలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ SEZ కూడా టైమ్ ఓవర్. శ్రీ మహారాజా సనోజివా రేషంబా అసోసియేట్ చేస్తాడు. తమిళనాడు నుంచి శివ అసోసియేట్ చేస్తున్నాడు. Sir, I am from శివ ఇస్ అసోసియేటింగ్. I am from Lok Sabha, sir. శ్రీ మహారాజా సనోజివా From Lok Sabha, sir. From Lok Sabha. లోక్సభ. Honorable Chairman, sir, Manipuri language means Meitei law was included in the 8th schedule of the Indian Constitution on 20th August 1992, along with other languages like Konkani and Nepali. Accordingly, Konkani and Nepali we are already included in Indian currency notes. Now Manipuri is being taught up to MA first semester in the Manipuri script, Meitei Mayek. I therefore request the government through this August House to include Manipuri language in Manipuri script in Indian currency note, which is the wish and long cherished dream of our Manipuri people and Honorable Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh. Right. Thank you, sir. Thank you, Shambaji. Sri Ashok Siddhartha. थैंक यू सर. सब्जेक्ट है सर दसमोत्तर कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को अल्पसंख्यक छात्रों के समान ही स्कॉलरशिप देने के संबंध में. महोदय, किसी भी समाज और राष्ट्र का निर्माण बगैर शिक्षा के अधूरा है. इसी कड़ी में सदन का ध्यान बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर दिलाना चाहूंगा कि पूरे देश में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को दसमोत्तर कक्षा में पढ़ने वाले छात्रवृत्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार का अनुपातिक संबंध 60-40 का रहा है. लेकिन इस दलित विरोधी सरकार ने वर्ष 2017-18 से अनुपातिक संबंध 60-40 के स्थान पर 10-90 अर्थात 10% केंद्र सरकार और 90% राज्य सरकार के लोगों को शिक्षा से की जिम्मेदारी डालकर दलित समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का मन बना लिया है. हालात यह हो गए हैं कि राज्य सरकारें जो पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रही हैं, यह 90% धन देने की जगह योजना को ही बंद करना उचित समझती हैं. मानवर बीजेपी सरकार दलितों के ऊपर न केवल आप क्या चाहते? बीजेपी सरकार जी सर, पिछले एक साल से सर पिछले एक साल से यह मामला कैबिनेट में विचाराधीन है. लेकिन प्रधानमंत्री जी को अभी समय नहीं मिला है कि 60 लाख पिछले 14 राज्यों के 60 लाख दलित बच्चे छात्रवृत्ति न मिलने के कारण 10वीं कक्षा
अर्थात 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई अगर में छोड़ देंगे। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार दलितों की वास्तविक स्थिति ऐसी है तो जिस प्रकार दसमोत्तर कक्षा में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्र के बच्चों के लिए 100% और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 75-25 अनुपात उसमें, तो इसी प्रतिशत 60 लाख बच्चों को भी 100% केंद्रीय स्कॉलरशिप अन्यथा देकर के इन्हें पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को संवारे, उनकी सच्चा को सतत जारी रखें। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा विषय लिया, वो विषय के ऊपर ध्यान देना था, फिर इधर उधर गया, मामला गया। मंत्री जी विषय सभापति महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का एक फार्मूला 40 साल से अधिक समय से चल रहा था और उस फार्मूले के आधार ये था कि 5 सालों में, पंचवर्षीय योजना के 5 सालों में सबसे अधिक जिस राज्य ने उस साल में पैसा दिया है वो कमिटेड लायबिलिटी बन जाती थी और उतना पैसा फिर राज्य सरकार को देना पड़ता था और बाकी जो बचता था वो केंद्र सरकार देती थी। इसका दुष्परिणाम ये निकला कि कई राज्य, मैं ये कहूं कि आधे से अधिक राज्यों को एक पैसा भी केंद्र से नहीं जाता था फार्मूले के हिसाब से। हमने इस फार्मूले को बदल करके 60-40 का रेशो कर दिया। 60-40 अर्थात 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी और इस कारण से अब कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी केंद्र से। केंद्र से 60% मिलेगा। जितना पिछले साल उन्होंने खर्च किया है उसका 60% देंगे। निश्चित रूप से सभी राज्यों को अब छात्रवृत्ति। धन्यवाद नेताजी। आप उनको नहीं प्लीज 0 ओवर इफ नेसेसरी यू कैन कॉल अशोक सिद्धार्थ, समझाइए उनको। कोई विषय है तो आपस में जाके मिलने में क्या प्रॉब्लम। श्री मुजीबुल्लाह खान लोकसभा का, यहाँ प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के जो अच्छे प्रोग्राम्स में स्वच्छ भारत मिशन भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। खास करके माननीय प्रधानमंत्री इसको बहुत सीरियसली लिए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कागज और कलम में है कि कितना करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट बना है, वो सचमुच बना है या सिर्फ कागज में बना है, एक बात। दूसरी बात, स्वच्छ भारत मिशन को लेके कौन कौन से राज्य से कंप्लेंट्स आया है या कुछ नेगेटिविटी कुछ आया है केंद्र सरकार के पास या नहीं। हमारे राज्य में उड़ीसा में मेरे मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक को जब स्वच्छ भारत के मिशन में जो थोड़ा सा गड़बड़ी पता चला, खास करके मेरे डिस्ट्रिक्ट में, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में झरी गांव बोल के एक पंचायत समिति है, एक ब्लॉक है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के नाम में खाली घर बनाए थे, फोटो उठा के पैसा खा गए थे। साथ ही साथ कार्रवाई किए माननीय मुख्यमंत्री, विषय बताइए, विषय आगे। हम वीडियो को सस्पेंड किए, उस वीडियो, लोकल वीडियो को। तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे अन्य राज्यों में भी होता होगा, आप लोग उसको ध्यान दीजिए और एक स्क्वाड बनाइए जो केंद्र की तरफ से, कि वो स्क्वाड हर राज्य में जाए, देखे कि सचमुच टॉयलेट होता है या नहीं होता है। राइट, धन्यवाद। ओके मुझे जी। श्री कनकमेडला रवींद्र कुमार, कनकमेडला रवींद्र कुमार, गैलरी, తెలుగు సార్, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు విషయానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని ప్రస్తావించుటకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చైర్మన్ గారికి ధన్యవాదములు. ఈ కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంతము మొత్తం విజయవాడ సిటీలో ఉన్న బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ కృష్ణా ఉన్నది. అది అన్ని రకాలుగా చూసుకున్నా కూడా రైలు కనెక్షను, రోడ్డు కనెక్షను, ఎయిర్ కనెక్షను అన్నిటికీ విజయవాడలో ఉన్నది. విజయవాడలో కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయడానికి ఇంతకు ముందు అన్ని ఆఫీసర్స్ అందరూ అంగీకరించినారు. తర్వాత సెక్షన్ 85(2) ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం కూడా అది హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి షిఫ్ట్ చేయాలని, విజయవాడ షిఫ్ట్ చేయాలని కూడా పేర్కొనబడటం జరిగింది. దానికి తగినట్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గతంలో 26/6/20, 11/11/2019, 4/8/2020, తర్వాత మినిట్స్ 9/1/20 కూడా మీటింగ్ లో చర్చించి
కృష్ణా రివర్ బోర్డుని విజయవాడలో మార్చడానికి అంగీకరించడమైనది. దానికి అనుకూలంగా 6/10/20 ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ విజయవాడలో మార్పించడం కోసం కృష్ణా రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ అవార్డ్స్ ఇవి కూడా నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 కూడా అయినాయి. నెంబర్ 3 ప్రొసీడింగ్స్ లో ఉన్నాయి. ఇవి కూడా జరగడానికి కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతం చాలా ముఖ్యమైన ఉంది. ఇలాంటి స్టేజ్ లో ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 25/12/2020 విశాఖపట్నం మార్చాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుని లెటర్ రాయడం జరిగింది. అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అబ్జెక్షన్ గా ఉంది. దీన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా 15/1/2021 లెటర్ రాస్తూ విజయవాడ మార్చడానికి అభ్యంతరం తెలిపి ఉన్నారు, విశాఖపట్నం మార్చడానికి. అందువల్ల జలశక్తి మినిస్టర్ చర్య తీసుకుని ఈ విషయంలో కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుని కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతమైన విజయవాడలో ఏర్పాటు చేయడానికి తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా సూచిస్తున్నాం. మంచిది, మంచిది. తీసుకున్న 3 క్యాపిటల్స్ నిర్ణయంలో దీనికి సంబంధం లేదు. అందువల్ల దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని No, please conclude. No, Krishna River Management Board to be kept in Vijayawada, not to shift in Visakhapatnam. That is your point, that's all. He was quoting all the GOs earlier orders. Sri Bikash Ranjan, CPM, sorry, Sri Bikash Ranjan. Bikash Ranjan is... Yes. I mean that... Lok Sabha, please. Lok Sabha chamber. Puriye. This matter relates to the Rights of Persons with Disabilities Act. This act was enacted pursuant to commitment to the International Covenant. Now there were 9 institutes. The government is proposing to reduce them to 4 clusters. If that is done, ultimately the benefit which was sought to be given to these disabled persons would really be frustrated. Therefore, I will be appealing to the government not to consider the question of reducing the institutes. On the contrary, to spread it, decentralize it, so that the benefits are really given and reached to these poor disabled persons for their skill development, education and health. This is my appeal to the government. Thank you, Ranjan ji. I hope the minister will take note of it. अभी जो disabilities centers है ना, वो 8 है, अब उसको 4 करने के लिए सोच रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं. आप देख लीजिए. श्री M.V. श्रेयंस कुमार, Gallery 4. At a time when the whole society is stricken with the terror of terrible pathogen, hope comes in the form of Image Hospitals, truest concern for the patients, backed by the strong team of doctors and allied staff. In spite of overwhelming situations, Image Hospital stood the test of time to realize its only dream of making quality Medicare affordable to all, and continues as always with added vigor in the wake of Corona crisis. Born with a unique spirit of reaching out to the needy over the years and following the same trend in these dark hours of COVID crisis, infusing into those affected with a deep sense of care, cure and confidence. Well, the characteristics mark of Image... Start the operation of the wide body aircraft, sir. The preliminary report was supposed to be submitted within 1 month, even after 6 months not being submitted. Moreover, they asked for an extension for 2 more months, sir. Mostly Gulf workers from Malabar, who are foreign exchange earners for the country, are dependent on Kozhikode Airport for many years, sir. Many development works, including extension of runway, new parking area, apron, approach road, etc., has been pending. I request that the inquiry of the aircraft be expedited and report be released, and the wide-bodied aircraft allowed so that big airlines start operation in Kozhikode. Thank you, Shreyans Kumar ji. Professor Manoj Kumar Jha, Associate. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गंभीर चिंता के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया. माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं. सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था, 7वें दिन 1 लाख हो जाता है. उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है. और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है. मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं. एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये
खिलवाड़ ना हो सके, यही मेरी सबमिशन था। विषय महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा, मगर ये विषय जांच करने का विषय है। श्री शमशेर सिंह दलो, टाइम सर रोजी जस्ट मेंशन बिकॉज। Thank you, sir. Sir, I bring to your kind notice that the central government has not released its full share to the state government, especially to Punjab, since 2017. And as a result of this, lakhs of vulnerable SC students are suffering as the unaided and private colleges have resorted to pressure tactics by denying admission to the SC student and compelling enrolled student to drop out in the middle of course, causing disruption of studies and now withholding their degrees in Punjab also. I humbly request you to kindly direct the central government to release the funds immediately. Thank you. धन्यवाद जी। मंत्री जी रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं, अच्छा है। हाँ माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट में। हाँ, ये कहना सही नहीं है कि पंजाब राज्य को उसके शेयर की राशि केंद्र से नहीं दी गई। जो हिस्सा उनका बनता था वो सब दिया गया, जो पैसा दिया गया उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारी अनियमितता की, उस अनियमितता की जांच शासन स्तर पर भी हुई और कोर्ट स्तर पर भी ये मामला गया हुआ। वो अभी भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे और उन्होंने क्लियरेंस देने की बात कही थी, वो देंगे तो अगर उनका कोई हिस्सा बनता है तो हम उनको प्रदान करेंगे। ठीक है। दुलो जी, टेक इट अप विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इन द स्टेट। वो कह रहे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिले तो और देखेंगे, तो इसलिए आप वहां स्थानीय एमपी है, बहस का विषय नहीं है। ही इज अश्योरिंग दैट इफ द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इज सेंट and there are no irregularities, if anything is due, it will be given. So please, as MP, you take up with the concerned authorities there in the state and then do the needful. Okay, it's over. Now question hour. Question 121. Sri Ram Shakal. क्वेश्चन नंबर 121। Right. मंत्री जी। ठीक है। Supplementary one. माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, सामान्य नागरिकों तथा खास करके गरीब लोगों को सस्ते दर पे उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई जाए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से। और जैसा उन्होंने बताया कि आज की डेट पे पूरे देश में 7,290 जिला केंद्रों पे जन औषधि केंद्र की स्थापना हो चुकी है। मैं मंत्री से गुजारिश करूंगा, जानना चाहूंगा, क्योंकि हर गरीब आदमी जिला हेडक्वार्टर पे नहीं पहुंच सकता, क्या आगे ये योजना है ब्लॉक स्तर पर ले जाने की? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना प्रधानमंत्री जी का गरीबों के प्रति कमिटमेंट से निकली हुई योजना है। सारे देश में आज के दिन में 7,326 जन औषधि स्टोर ओपन किया गया है। ये जन औषधि स्टोर पर 700 से अधिक मेडिसिन और 144 से अधिक सर्जिकल डिवाइस मिलती है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मार्केट रेट से बहुत चिपर और अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन जन औषधि स्टोर के माध्यम से मिल रही है। पर डे 25 लाख लोग जन औषधि केंद्र का लाभ लेके देश को गरीब और मध्यम वर्ग को उससे फायदा हो रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, जो हम पूछे कि हर क्या इसको निचले स्तर ब्लॉक स्तर पर ले जाने की योजना है, उत्तर तो दिया नहीं मंत्री जी ने। और दूसरा मैं जानना चाहूंगा, ये दूसरा नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने दूसरा दिया, आपने दूसरा पूछा और तीसरे में जा रहे नहीं। पहले अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 734 सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में आज जन औषधि केंद्र है और अगले दिनों में हर ब्लॉक स्तर पर जन औषधि केंद्र ओपन हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड। उन्हीं का सवाल वही है। श्री अरनाथ सिंह यादव जी। माननीय सभी नागरिकों, विशेषकर गरीबों और वंचितों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औषध विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना का शुभारंभ जब किया गया था तो देश के लोगों ने इसका बड़ा भारी स्वागत किया। मेरा सवाल माननीय यह है
के, चाहे सरकारी चिकित्सक हों चाहे प्राइवेट चिकित्सक हों, जेनरिक दवाओं के पर्चे बनाते नहीं, दवाइयां लिखते नहीं, और जब कहते हैं तो बड़ा उपेक्षापूर्ण भाव जो है जेनरिक दवाओं के प्रति प्रकट करते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जेनरिक दवाओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, तो इस के लिए चिकित्सकों को कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? सर, देश की जनता में जेनरिक मेडिसिन के संदर्भ में व्यापक अवेयरनेस हो आवश्यक है। आज अमेरिका में 4 टैबलेट लोग खाते हैं, उसमें एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। सारा विश्व में कुल 6 टैबलेट कंज्यूम होता है, उपयोग होता है, उसमें एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। और इसलिए ही जन औषधि स्टोर के माध्यम से जेनरिक मेडिसिन के संदर्भ में जनता को में अवेयरनेस आए, उसके लिए जन औषधि स्टोर खोला गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2014 के पहले जेनरिक मेडिसिन का शेयर इंडिया में 2% था। ये जन औषधि स्टोर ओपन हुआ, धीरे धीरे डॉक्टर भी लिखने लगा। एक क्वालिटी मेडिसिन होती है, अफोर्डेबल मेडिसिन होती है, इसलिए आज उसका शेयर बढ़ के 8% हो चुका है। उनका कहना यह है, आपने जस्ट टच किया, डॉक्टर्स केवल अंग्रेजी मेडिसिन ही रेकमेंड कर रहे, ये जेनरिक मेडिसिन रेकमेंड नहीं कर रहे। क्या उस दिशा में उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से बात करके आप दोनों कुछ आगे बढ़ सकते हैं क्या इस विषय में? माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए भी सरकार ने काम किया है। आज तक जो ट्रिप होती थी मेडिसिन की, उसके पर उसका ब्रांडेड नेम बड़ा लिखा जाता था। सरकार ने आदेश किया है कि आपको जेनरिक नेम, उसमें जो सॉल्ट है उसका नेम बड़ा लिखना है। फॉर एग्जांपल, पैरासीटामोल सॉल्ट है, पहले वो छोटा लिखा जाता था और उसके ऊपर उसका ब्रांड नेम कालपोल हो तो कालपोल बड़ा लिखा जाता था। आज सरकार ने एक जेनरिक नेम बड़ा लिखने के लिए तय किया है और एक एडवाइजरी भी जारी की है कि सब जेनरिक मेडिसिन लिखे, और धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी लिखना शुरू किया। राइट। श्री अशोक वाजपेयी, लोकसभा। जी, लोकसभा चैम्बर से। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जेनेरिक केंद्रों के ऊपर बहुत सारी दवाएं जो नोटिफाइड हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं रहती हैं, और जब कभी कोई मरीज या कोई जिसको आवश्यकता होती है जेनेरिक स्टोर पर जाता है तो दवाइयों की उपलब्धता न होने के कारण उसे निराशा लगती है। क्या जो सूचीबद्ध दवाइयां हैं जेनेरिक स्टोर्स की, क्या उन्हें प्रत्येक जेनेरिक स्टोर पर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न इस टाइप का है कि कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाओ तो सब मेडिकल स्टोर पर जाने से सब ही मेडिसिन मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कई मेडिसिन कभी उपलब्ध होती है, नहीं होती है। कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल, कोई कार्डियक हॉस्पिटल होती है तो उसके बगल में जो मेडिकल स्टोर होता है उसमें कार्डियक मेडिसिन ज्यादा मिलती है। तो ऐसे सभी जन औषधि स्टोर पर हमारा प्रयास रहता है कि जब आज 744 मेडिसिन आज हमारे सिलेबस में है, सभी उपस्थित हो, उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेडिसिन उपलब्ध हो। श्री विनय विश्वम। Thank you, sir. One can only appreciate the efforts made by the governments to promote generic medicines. But yesterday in the other house, Lok Sabha, the government informed the house that 5 of the Indian public sector companies who produce the medicines are going to be closed out. I would like to know how this decision of the government... Somebody's phone is on. Please, किसी को फोन बज रहे, यही प्रॉब्लम। कुछ लोगों को फोन ऑन करना मालूम है, ऑफ करना मालूम नहीं है। जो बगल में बैठे वो लोग, उनको मदद करिए। I would like to ask the government humbly. Fact है that how this decision of the government to close down the 5 companies, right, including the Indian Drugs and Pharmaceuticals, Rajasthan Pharmaceuticals, are going to affect the government efforts to have generic medicines to everybody. Right, Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि ये प्रश्न जनऔषधि से लगता नहीं है, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल्स भारत सरकार की कंपनी थी उसमें से 2 कंपनीज का हम स्ट्रेटेजिक सेल कर रहे हैं, उसको बंद नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो 3 कंपनीज है वो पहले से ही बंद हो चुकी है और डिसीजन पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 सुशील कुमार गुप्ता। सर, क्वेश्चन 122 लोकसभा। सर, क्वेश्चन 122 जी।
मंत्री जी ग्रामीण विकास पकड़ के रखा मैंने। ठीक है। सप्लीमेंट्री सुशील कुमार जी। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कोरोना के दौरान लाखों रोजगार युक्त मजदूर देश भर के शहरों से शहर छोड़कर गांव में चले गए और बेरोजगार हो गए। महिलाओं की भी उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा है। सवाल सुशील जी, सवाल ही बोल रहा हूं सर। मनरेगा के दौरान काम करने वालों में महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मनरेगा के अंदर कोई प्रोविजन किया है? ठीक। सभापति महोदय, क्वेश्चन जो था उससे हट करके है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी। महिला संबंधित है। जी 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 जी। कोरोना काल में माननीय सभापति महोदय, मैं यदि पिछले वर्ष की तुलना में देखूं तो इस वर्ष 330 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं और मैं मानती हूं कि कोरोना काल में यदि मनरेगा नहीं होता तो प्रवासी मजदूर जो थे उनको रोजगार नहीं मिलता। मैं इसके लिए, क्योंकि ये रोजगार परक नहीं है, जब कहीं काम नहीं मिलता तब मनरेगा में लोग काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मनरेगा में लोग काम ना करें, उनको और पैसा अधिक जहां मिल रहा वहां काम कर रहे हो। लेकिन मैं कह सकती हूं कि आज लोगों के घरों में रोटी मिली, लोगों को काम मिला तो मनरेगा ने ही दिया है और हमारी सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत अधिक बजट दिया। जी, दूसरा सप्लीमेंट्री। इसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने सवाल के जवाब में बताया कि मनरेगा के 100 दिन से ऊपर बढ़ाने की कोई योजना नहीं है और आज के दिन 220 रुपए प्रतिदिन की मिलती है, यानी कि एक परिवार को साल में 22,000 रुपए मिलते हैं। क्या सरकार का ये जो श्रम दिवस बढ़ाने की योजना तो नहीं है? क्या ये जो उनकी दैनिक मजदूरी है 220 रुपए से उसको बढ़ाने की कोई योजना है? राइट। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, ये क्योंकि जब व्यक्ति को काम नहीं मिलता तब काम रोजगार में मनरेगा में लोग काम करते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि 100 दिन से अधिक बढ़ाने का भारत सरकार का भी कोई विचार नहीं है। हाँ, राज्य सरकारें बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। उसमें मैं उन सरकारों को बधाई देती हूँ जिन सरकारों ने बढ़ाया। उड़ीसा, हिमाचल और केरल, इन 3 प्रदेशों ने अपने आप 50 दिन का अधिक बढ़ा करके दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर कोरोना के समय अन्य रोजगार बंद हो गया था, उसमें काम मिला है। माननीय सदस्य का जो बढ़ाने का उद्देश्य है वो बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही हमने वित्त मंत्री से कोई बात। श्री रामगोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान मैंडेज बढ़ाने पर तो मंत्री जी ने फ्लैटली मना कर दिया। यहाँ तोमर साहब बैठे हुए हैं, है कि नहीं? हाँ, लोकसभा में। रामगोपाल जी, मैं बिल्कुल एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, जहां से मंत्री जी आते हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं और कितने लोगों को काम मिल रहा है? मंत्री जी के पास कुछ स्पेसिफिक समाधान आए तो नहीं तो जांच करके दीजिए। नरेंद्र सिंह जी है। माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि मनरेगा बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और पूरे देश भर में मनरेगा के अंतर्गत लगभग 14 करोड़ जॉबधारी हैं और 10 करोड़ के आसपास सक्रिय रूप से लोग इसमें काम करते हैं। पिछले जब गुप्ता जी पूछ रहे थे उस समय उन्होंने उस समय कहा था लोकसभा तो मैं वॉइस माइक बताना अब बैठ के बोलिए नरेंद्र जी, बैठ के बोलिए। माइक। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो महिलाओं के काम का प्रतिशत है वो निश्चित रूप से 52% है और इस बार मनरेगा में रिकॉर्ड काम हुआ है। 330 मानव दिवस लगभग सृजित हुए हैं। जहां तक जिले की बात है तो निश्चित रूप से काम तो सभी जगह चल रहा है,
और चंबल का जो हमारा इलाका है वो निश्चित रूप से बहुत पिछड़ा है, मुरैना हो, श्योपुर हो और रामगोपाल जी का जिला हो, जिलेवार जो जानकारी है वो मैं रामगोपाल जी को अवगत करा। ठीक, ओके। आगे श्री डॉक्टर अमी याज्ञिक, I have to take care of all sides and then names. This side on your side is sitting there, that side now. Thank you, Honorable Chairman, sir, for this opportunity. Sir, I would like to ask the Honorable Minister. In December 2020, 26.34 million people demanded work under Manrega. This is 113.13% higher than the demand in December 2019, that is before COVID, and 16% higher than November 2020. Is the minister or the ministry aware of this surge in demand under Manrega? And if yes, what steps are you going to do with the revised allocation in the budget for this sector? Mantri ji. माननीय जी, कैबिनेट, ओके, बोलिए। मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार की मांग का सवाल है, लगातार इसमें वृद्धि होती रहती है। माइक प्लीज। माइक चालू है सर। लगातार वृद्धि होती रहती है और हम लोगों की कोशिश रहती है कि जैसे ही मांग आवे हम उसको जल्दी से जल्दी रोजगार उपलब्ध कराएं और सारा देश इस बात का साक्षी है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट को लगातार बढ़ाने का प्रयत्न किया है। पिछले बार बजट 61,000 करोड़ था, इस बार बजट में 73,000 करोड़ रुपया रखा है। और जब कोविड महामारी आई तो आप सबके ध्यान में है कि आवश्यकता थी कि वैकल्पिक रोजगार गांव में उपलब्ध हो, इसलिए 61,000 करोड़ बजट होने के बाद भी केंद्र सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और जिसमें 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्यों को जारी किए जा चुके। श्री कनकमणि रविंद्र कुमार गैलरी। In the state of Andhra Pradesh, huge amounts are sanctioned for under MG Narega schemes. Works have been already completed long back during 1819, 1920. Some of the parliament members represented the ministry. What is your question? My question is, sir, represented ministry alleging that the payments have not been made and under political grounds, whether that representation has been considered, whether the ministry has taken any steps to make the payment. Right. To make the payment. About the arrears. And the funds are also. Please, don't prolong. Question hour. Mantri ji, whether the government received any representation from members of parliament over non-payment of the wages due. माननीय सभापति महोदय, मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी का भुगतान है, आवाज नहीं आ रहे वहां, मजदूरी का जो भुगतान है वो पूरा का पूरा मजदूरों के खाते में 99% पहुंचता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि राज्य सरकार की कार्यवाही में विलंब होता है, तो उस मामले में भी केंद्र सरकार ने स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया है और अगर कहीं विलंब होता भी है तो ब्याज का भुगतान करने की भी जो बात प्रावधान की गई है एक्ट में, तो राज्य सरकारें ब्याज भी देती हैं। लेकिन जहां जो सदस्य कह रहे हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार जो शिकायत आई है उस पर से हमने राज्य सरकार को लिखा है और उनसे रिपोर्ट मंगाई है। जब रिपोर्ट आएगी तो सदस्य को अवगत कराएंगे। Okay. See, question number 1, 2, 3, Dinesh Trivedi. Okay. First supplementary. Question relates to the bridges, which is safety, and safety never sleeps. So I must compliment the Honorable Minister for putting so much of capex into safety. I know कि railway is a robust organization, मगर उसकी व्यवस्था चरमरा गई थी because of safety, and now you are modernizing. So my question is, would you also consider using modern scientific way to measure the strength of the bridges, like 3D mapping, like drones and other modern equipment? Right, Dinesh. Thank you very much for your gracious comments, Honorable Member. Sir,
over a period of time, safety had become a casualty of inadequate budgets and very often misdirection of budget allocation. In the last 6 years, we have focused more and more amounts to safety, and I'm happy to share with this august House through you, Chairman, that the last passenger death because of a railway accident happened on 22nd March 2019, which means for the last nearly 22 months, we have not had a single passenger death due to train accident. Please, sadly, no train can move without signal. Sadly, Chairman, sir. Without the permission. Sadly, Chairman, sir, some members don't seem to remember that trains were running all the way through till 22nd earlier. But well, some people have short memory. We can't help that. As regards the bridges, we have focused our attention on bridge repairs and maintenance so much that even though we have a very large number of bridges which are over 100 years old, in fact the number is very staggering, sir, we have 34,665 bridges in Indian Railways which are more than 100 years old. Despite that, remember to introduce more and more modern devices. Drones would of course not be the right approach. Approach would be more like sensors. Approach would be more towards checking the tensile strength of the bridges. But it's a very good suggestion. Second supplementary. We have introduced new ideas. We'll do some more in the coming days. Second supplementary. So I am aware that bridges are a vertical under Department of Civil. Now when you have so much of rightly capacity, would you consider to have a separate department using modern technology for bridges alone? Honorable Chairman, I'm happy to share with the House through you that we have gone through an elaborate restructuring of the Railway Board, something which hadn't happened for years and years. And we were living in the old age style of working, inherited over several decades. We have now, in the new restructured Railway Board, designated a Director General of Safety for the first time in the Indian Railways, whose total focus will be on safety. Right. Srimati Seema Dwivedi, Lok Sabha. Seema Dwivedi ji. हाँ, माध्यम से आपका बगल का है, मुझे भी पुराना परिचय, इसलिए मैं बैठा खड़े आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहती हूँ कि आपने माननीय मंत्री जी ने आपने रेलवे के बारे में बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। माननीय मैं उत्तर प्रदेश से जनपद जौनपुर से आई हूँ और माननीय मैंने देखा है कि मुरादाबाद शाहपुर में रेलवे स्टेशन जंघई के ऊपर जो बना पुल है बहुत ही जर्जर स्थिति में है और जौनपुर जंक्शन का भी पुल बहुत पुराना है, उस पर भी अनुरक्षण का काम करना अति आवश्यक है। और माननीय मैं आपके अनुज्ञा से एक अनुरोध भी करना आपने पूछा है। हाँ जी, जौनपुर के नई गंज क्रॉसिंग पे और मुरादाबाद शाहपुर के क्रॉसिंग नया पुल बनने का प्रस्ताव है। माननीय मेरा अनुरोध है, अगर आपके एजेंडे में हो तो जरूर इसको शामिल कर लीजिएगा, मेरा आपसे अनुरोध है। सीमा जी। Honorable Chairman, sir, I will of course be able to give more details about the specific Jaunpur bridge. We have 1,50,000 bridges, so I certainly have not carried details of 1,50,000 bridges. But I'd be happy to share with the honorable member that now all the major bridges, all the important ROBs, FOBs, data on the bridge itself or at the nearest railway station, so that the common public also is aware how the railways is maintaining the bridges. It will generate confidence in the passengers and will ensure responsibility on the concerned officials, whose name and number is also written with the bridge details. Good. 124. Sri Muhammad Nadimul Haq. Nadimul Haq ji, कहाँ है? नहीं. Minister, food processing. सभा पटल पर कर दिया गया था। Supplementary, no. Okay. कहाँ है? श्री जुगल सिंह लोखंडवाला जी, लोकसभा।
धन्यवाद चेयरमैन। इधर सॉरी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर कितने फूड पार्क पास किए और कितने बनाए गए हैं। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय। अब मास्क निकाल के बोलिए, क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं सभापति महोदय। ये सबके लिए नहीं, वो तो जवाब दे रहे इसलिए मैंने कहा। गुजरात में अभी तक 86 प्रोजेक्ट्स हम लोग सैंक्शन दिए हैं और जिसमें 37 प्रोजेक्ट अपनी काम कर रही है। और हमारे सांसद ने जो प्रश्न किया कि अभी तक मेगा फूड पार्क गुजरात में कितना बनाए गए हैं, अभी तक हम लोग 2 मेगा फूड पार्क सैंक्शन दिए हैं गुजरात के लिए, जिसमें एक कंप्लीट हो गया है, काम कर रहे हैं। श्री कामाख्य प्रसाद तासा, लोकसभा। कामाख्य प्रसाद जी कहाँ? हाँ प्लीज बोलिए। हाँ, थैंक यू सर। मैं सभापति महोदय, मैं मिनिस्टर का आंसर सुना। वहाँ पर प्लांट प्रोटीन बेस्ड जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंडस्ट्री लगाने का बात बोल रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आसाम में कितना फूड पार्क है और उसमें प्लांट बेस्ड मीट एंड प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए क्या व्यवस्था किया है, उसको मंत्री काइंडली बताइए। तासा जी ने असम से, मैं भी असम से हूँ। अभी तक असम में एक मेगा फूड पार्क है जो नलबाड़ी जिले के अंतर्गत आती है और वो कंप्लीट हो गया है, अपनी काम कर रही है और ये 2009 में सैंक्शन दिए गए थे और इसकी कुल लागत 73.2 करोड़ है और हमारी मंत्रालय की तरफ से अनुमोदित ग्रांट 43.25 करोड़ है और इसमें वर्तमान 7 यूनिट काम कर रही है और इसमें वर्तमान में लगभग 92% लैंड अलग अलग यूनिट को आवंटित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत असम में 28 प्रोजेक्ट सैंक्शन दिए जा चुके हैं, जिसमें 7 अपनी काम कर रही है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने 10,000 करोड़ की प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस योजना का भी वर्ष 2020-21 के शुभारंभ में किया गया है। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद। क्वेश्चन 125 डॉक्टर भगवत कराद, लोकसभा सर। लोकसभा। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सप्लीमेंट्री 1। सर, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में से बैकवर्ड रीजन है और इस रीजन में मंत्री महोदय ने इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का किया है मनमाड़ से नांदेड़ तक, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन है सर, मनमाड़ से परभनी जो 225 किलोमीटर है उसका डबलीकरण कब हो जाएगा सर? राइट। सर, मुझे सदन को आपके माध्यम से बताते हुए खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं अपने बचपन में शायद रेलवे के साथ काफी जुड़ाव था, उनका बचपन रेलवे स्टेशन पे गुजरा, उनको ये ध्यान में था कि कितना महत्व है रेलवे की व्यवस्थाओं का भारत की नागरिकों के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। उसके लिए एक परिप्रेक्ष्य जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। 2009 से 14 के बीच जहां सालाना 45,000 करोड़ रुपए हर वर्ष एवरेज इन्वेस्ट होते थे अलग अलग कैपेक्स के ऊपर, वहीं बढ़ते बढ़ते 2020-21 में वो बढ़ के 1,60,000 करोड़ हो गया। ये मनमाड़ के बारे में जानकारी है क्या? मैं बता रहा हूं सर। नहीं, सवाल
सर 21-22 में उसको बढ़ के 2,15,000 करोड़ कर दिया, यानी 5 गुना 5 टाइम्स कैपेक्स बढ़ाने के बाद भी, मैं सवाल पे आ रहा हूं सर, उसके बावजूद आज लगभग 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऐसे अलग अलग देश में चल रहे हैं, जिसके लिए इतना खर्चा करने के बाद विलंब हो रहा है। और उसकी मैं जिम्मेदारी पूरी तरीके से, जो पहले राजनीतिक कारणों से प्रोजेक्ट्स को मनमाड़ के बारे में जानकारी है क्या? नहीं, मनमाड़ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट की जानकारी सेकंड सप्लीमेंट्री स्पेसिफिक सर, my second supplementary question is, औरंगाबाद शहर में पिट लाइन रिकमेंड हो चुकी है साउथ सेंट्रल रेलवे से। ये पिट लाइन और बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं, औरंगाबाद से 40 गांव, औरंगाबाद से बीड़ और औरंगाबाद से पुणे। तो इसका कब तक चालू हो जाएगा काम? जैसे मैं सेकंड स्पेसिफिक लाइन में स्पेसिफिकली आपने सवाल में पूछा नहीं, आप स्पेसिफिकली मंत्री जी को लिखिए, वो आपको स्पेसिफिकली जवाब देंगे। मैं इसीलिए वो परिपेक्ष दे रहा था माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स पहले सैंक्शन होते थे, माननीय सांसदों को भ्रमित किया जाता था अनाउंस करके बिना राइट। रामिदा बड़ा गैलरी से सबको मौका मिलना चाहिए, समय वही प्रॉब्लम है ना। 15 क्वेश्चन, दैट इज माय डिफिकल्टी। माननीय महोदय, मैं रमीला बारा गुजरात के माध्यम से रेल मंत्री को धन्यवाद करती हूं कि अहमदाबाद से हिम्मतनगर होके खेड़ब्रह्मा तक चलने वाली मीटर गेज रेलवे को ब्रॉडगेज में रूपांतर किया। काम पूर्ण हुआ, हिम्मतनगर तक रेल शुरू हो गई, परंतु हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक का काम करीब 40 किलोमीटर रेलवे लाइन का ब्रॉडगेज में रूपांतर करने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो वह कब शुरू होगा और प्रजा को मांग है कब मिलेगा? अभी तो उनके पास जवाब रेडी नहीं होगा, जानकारी लेके भेजेंगे। श्री एम षणमुगम। Through you, it is a very long bending. मास्क बैठ के प्लीज सिट डाउन. It is long, very long bending, doubling of railway line from Tanjavur to Viluppuram via Kumbakonam, Mayiladurai and Chidambaram. It is very long bending. What is the progress of that? That also a specific question you have to write to the minister. Minister will take note of it and inform you. See, देश में इतना रेलवे लाइन्स, इतना स्टेशन, इतना ब्रिजेस, अब इतना पेंडिंग है और कुछ ये भी हो गया तो उसका जानकारी रेडी नहीं अवेलेबल होगा ना. How can you prepare? How? What is the question? No, it is supplementary, sir. Try to understand. Jairam Ramesh ji. मंत्री तैयार है तो भी मेरा कहना है जो सवाल पूछा मेन सवाल उससे संबंधित, नहीं तो स्पेसिफिक कोई सवाल पूछा उसको नोट करके बाद में उनको जवाब देंगे.